أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں آپ سب کیسے ہیں، ویکنڈ کیسا گزرا؟ بہت بزی ہوتے ہیں آپ لوگ، میری ادھر سب بزی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا تھا۔ الحمدللہ۔ اور میں اتنی بزی ہو گئی آج کہ میں نے سوچا تھا آج آپ کو جو صفحہ 1 اشارہ 4 کے جو کوشچنز ہیں وہ بھیجوں، تو وہ بس میں آپ لوگوں کو بھیج ہی نہیں سکی، تو انشاءاللہ ہم یہ کور کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج جیسے اب آج ہوم ورک نہیں ملے گا آپ کو، تو آج وہ اسائنمنٹ ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ اور آپ لوگوں کی جو کوائریز جو آپ لوگوں نے ایک متقین کا پوچھا تھا، اس کے علاوہ جو بھی کویسچن ان کو نوٹ کر لیں، ہم انشاءاللہ اینڈ پر 10 یا 15 منٹ ہم وہ والے اپنے سارے مسائل حل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا سسٹرز؟ جی جی سسٹر ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنا پہلا صفحہ یعنی کہ اپنا پہلا پیج مکمل کر لیا۔ آج ہمارا دوسرا پیج اور ہم آج کا پہلا اشارہ پڑھیں گے، یعنی کہ صفحہ نمبر 2 اشارہ اے۔ اب آپ لوگوں کو جو ورک بک ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی نا کہ کس طرح سے آپ نے آگے چلنا ہے، اے کے ساتھ قرآن پارٹ کے ساتھ گرامر پارٹ، پھر اسی طرح سے بی سی ڈی۔ اب ہم الحمدللہ اپنے صفحہ نمبر 2 پر ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان 5 صفحات میں پڑھنا کیا ہے۔ ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو پہلے 4 پیجز ہیں اس پہ ہدایت کی بات کی، متقین، کافرین، منافقین اور قرآن کی دعوت، یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 5ویں صفحے پہ ہم پڑھیں گے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی۔ انشاءاللہ ہمارے 5 صفحات پورے ہوں گے اور ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے QC3 میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس طرح سے اپنے جو 5 پیجز کو ڈیوائیڈ کیا 4 حصوں میں۔ پہلے قرآن پاک کے ایک پارے میں سے ہم نے 20 پیجز کو 5 پہ ڈیوائیڈ کر کے پھر ہر پیج کے 4 حصے کیے، کیوں؟ تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں، اور اس میں جتنی گرامر ہم QC1 اور QC2 میں پڑھیں گے وہ ساتھ ساتھ ہم اپلائی بھی کریں، جہاں اس میں آنے والے واحد، جمع، مذکر، مؤنث اور اسی طرح سے افعال کو ہم سیکھ سکیں۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے یہ اشارے الحمدللہ دہرائے۔ اچھا جی، جو دہرائی کی کلاس میں نہیں تھا آپ لوگوں میں سے، وہ کوئکلی یہ اشارے ذرا ریوائز کر لیں میرے ساتھ۔ جو سسٹر نہیں تھی اب انہوں نے جوائن کیا۔ جی، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ الحمدللہ، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اور آج کے جو ہمارے اشارے ہیں وہ ہوگا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اس کے بعد ہوگا 2 روحیں۔ یہاں پر ساری انکار کرنے والوں کی بات ہے اس پیج پر جو ہم اپنا دوسرا صفحہ پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اچھا جی، سسٹر قمر آپ کا ہینڈ ریز تھا جی، کوئی کویسچن ہے آپ کا سسٹر؟ نہیں، جو میں نے کرنا تھا کر اشارے لیجیے، بتانے تھے۔ بتا دیجیے۔ بتا دیں سسٹر، یا آپ بتا رہی ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی؟ چلیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تعریف، دعا، ہدایت ہدایت اور and صفات۔ صفات۔ اور آج کے جو ہوں گے ان کو ہم مختصر اشارے ایسے کہیں گے، کافرین، کافرین، منافقین، منافقین، فسادی۔ ہاں جی، 2 روپے پڑھ لیجیے۔ فسادی۔ کافرین، منافقین، فسادی اور 2 رخے۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔
हम सबसे पहले तारुफ देख लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या है, लेकिन जो हम पहले पढ़ चुके, समझ चुके, एक मर्तबा मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा पहला इशारा है। चूंकि यहाँ पे जो हमारी पहली वाली जो लाइन थी, ये आयत मुबारका पिछले सफ़े के साथ कनेक्टेड थी, तो इसे हमने पढ़ लिया था। इस वजह से हमारा इशारा अब यहाँ से शुरू हो रहा है, इन्नल्लाज़ीना से। ठीक हो क्या जी? और आज हमारा ये इशारा 2 आयत पर होगा। 6 और 7 आयत हम आज इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। यहाँ होगा काफिरीन को हिदायत नहीं। तो अपने जो हाइलाइटर हैं वो भी अपने पास रखें, ताकि हम इंशाअल्लाह साथ साथ अपने इशारों को मैच भी करते रहें, कि ये इन आयत के साथ हम मैच करेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पिछली जो आयत जिसमें जिक्र किया गया, किस किस का बताएं जरा मुझे, किसकी सिफात थी? कौन से? मुत्तकीन की सिफात। मुत्तकीन की सिफात। इससे पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की जो कुरान से हिदायत पाने के अहल थे। अब उन लोगों की बात हो रही है कि जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। वो लोग भी हैं कि जिन्हें हिदायत मिली लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, कुछ थे जो वापस भी लौट आए, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो पलटते ही नहीं। अब हम इंशाअल्लाह ये डिटेल से इनके बारे में पढ़ते हैं। काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी, और इसका नतीजा क्या हम देखेंगे कि दुनिया में क्या सजा मिलती है और आखिरत में क्या सजा है। इनके दिलों और कानों पर मोहर और इनकी आंखों पर पर्दा है, और आखिरत में बड़ा दर्दनाक अजाब है, अजाबुन अजीम। ठीक हो गया जी? कुरान कितना आसान है। अब आप देखिएगा कि हमारा जो ये 3 लाइनों पर आज का जो इशारा है, सबक है, इसमें आप देखिए सिर्फ 5 ऐसे अल्फाज हैं जो हमने सीखने हैं, जो हमारे लिए नए हैं। ये जो वाअला अबसारिहिम गिशावत, में वाअला को साथ ही किया गया है, ये इसलिए ताकि हमें एक फिक्रा भी याद हो जाए। ये फिक्रों के हिसाब से भी निशान लगाए होते हैं ताकि आसानी से याद रखने के लिए। अब हम जब कहेंगे सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, और अक्सर ऐसे होता है कि इसके साथ हमें हम लम तुनज़िरहुम भी याद ही होता है, और मोस्टली जो खास तौर पे पहले पारे के 2-3 पेज अक्सर लोगों को याद ही होते हैं। अच्छा जी, हम इसकी तिलावत कर लेते हैं, तर्जुमा देखेंगे, फिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर, चाहे आप डराएं उन्हें या आप ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये किससे मुखातिब हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमने नए अल्फाज इसमें देखने हैं, लफ्ज ब लफ्ज देखेंगे इसको इंशाअल्लाह। इन्ना हम QC1 में पढ़ चुके, एक फ्रेज याद की थी, इन्नल्लाह, क्या था आगे? मअस्साबिरीन। साबिरीन। इसका फायदा ये होगा QC1 हमारा साथ साथ रिपीट होता जाएगा। अल्लाह जीना को भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था? हमने सूरह फातिहा में पढ़ा, सिरातुल लज़ीना, ठीक है। उसके बाद है कफरू, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, सवा, और क्या आया? जी सवा उन, देखिएगा सवा उन बराबर है, अलैहिम, अला वाला पूरा टेबल हम कर चुके, अला, ठीक है, अलैहि अलैहिम, ये वही अलैहिम है। ठीक हो क्या? अब ये जो सवा उन है, इसकी तनवीन ने हमें बता दिया कि ये इस्म है। अनजरताहुम, चाहे ये जो आ है ना, ये जो एक हमजा है, इसका माना यहाँ हम करेंगे चाहे, ठीक है। चाहे अनजरता, ये उसी तरह से अनजरता, आप, चाहे आपने डराया। अब ये क्यों इस तरह से, ये बात तर्जमे में थोड़ा सा फर्क पड़ा, इसको हम इंशाल्लाह आगे साथ साथ सीखते जाएंगे। यानी कि आप उन्हें डराएं, ये वही होम यूज हो रहा है, ठीक है, ये जो जमाइर वाला। अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं
کہ یہ جو فیل کے ساتھ ضمائر جڑتے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انذرتا ہم کے ٹکڑے کریں تو آپ نے اسی طرح سے ٹکڑے بنانے ہیں. چاہے انذرتا آپ، اسی طرح سے ہم آپ نے ڈرایا، اسی طرح سے ہم علیحدہ کر دیں گے انہیں. لم تنذر اور ہم. تنذر جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا انذرتا، اسی طرح سے یہ جو ٹیبل ہے تنذر، وہ جو یہ والے اشارے مضارع والے تھے نا، اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کچھ ملتی جلتی سی بات ہے، لیکن ایک بات ہو رہی ہے ماضی کی اور ایک ہو رہی ہے مضارع کی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ماضی میں پہلے بھی آپ نے جو ڈرایا، اب تک ڈرا رہے تھے، آئندہ بھی جب آپ ڈرائیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم الگ لفظ ہے، اس کا معنی ہے یا لم ایک الگ لفظ ہے، اس کے بعد تنذر الگ ہو گیا، اسی طرح سے ہم ضمائر والا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ٹکڑے کریں گے تو 4 ٹکڑے بنائیں گے. ان ٹکڑوں کو آپ اپنے اس پہ بک پہ چاہے اس طرح سے نوٹ بھی کر لیا کریں. یا جیسے ام کے اوپر ایک چھوٹا سا 1 لکھیں، لم کے اوپر 2، پھر 3 4، اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے لا، نہیں، ہم پڑھ چکے بار بار کہ لا کا معنی نہیں ہے. اسی طرح سے یؤمنون، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے مضارع کی، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کفرو، اچھا یہ جو کفرہ کا ٹیبل ہے نا، کفرہ یکفرو اکفر، کفر کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو منع کر دینا، کسی چیز کا انکار کرنا، انکار کر دینا. تو ہمارے ذہن میں کافر سے صرف یہ جو اللہ تعالیٰ کو نام ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے آ جاتے ہیں. تو مسلمان بھی کفر کرتے ہیں. مسلمان کس کا کفر کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں کو نہ مان کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر. مسلمان کرتے ہیں طاغوت کا کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رد کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. طاغوت کیا، وہ جو جادو وغیرہ، کالا جادو، وہ سارے وہ جو تھے نا، تو انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بذات خود کافر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اس کو صرف اسلام کو نام ماننے والوں کے لیے یوز کیا جائے. کیونکہ اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان کے مطابق ہم نے ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے. ہم ان کے ٹیبل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے اس طرح سے معنی سیکھیں گے. اس کو جب ہم عربی زبان میں یوز کرتے ہیں تو صرف نیگیٹو باتوں کے لیے نہیں یوز کر رہے ہوتے. وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا. کیوں ٹھکرا دیا؟ یا تو تکبر کی وجہ سے، یا پھر شک کی بنیاد پر. تکبر کس چیز کا تھا؟ سردار تھے اہل عرب میں، جو بڑے بڑے قریش مکہ میں جتنے بھی سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں. تو یہ تکبر ہی انہیں لے ڈوبا. اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے بات نہیں مانی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام لائے تو انہوں نے اس سے یکسر انکار کر دیا. اور ان کو کچھ شک بھی تھا کہ یہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ جو وحی آپ تک پہنچائی جاتی ہے، یہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. تو یہ شک اور تکبر دونوں چیزیں ان کے لیے اس طرح سے بن گئی کہ وہ ایمان کا راستہ، ہدایت کا راستہ ان پر کھل ہی نہیں سکا. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کی. بعض دفعہ اپنے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا، ہم اسلام قبول کرتے. اور آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر بھی لا کے دیکھا کریں کہ اس ٹائم میں بھی سب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں سے بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دائی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. تو یہ جو انکار تھا یہ ان کے لیے گمراہی کا باعث بنا. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں،
ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। जब ये आयत मुबारक इस तरह से कंप्लीट हो तो आप भी इसको साथ साथ इस तरह से पढ़ लिया करें, क्योंकि जहां पर आपको अलिम नजर आता है इसका मतलब है कि अब आपका टाइम है कि आप भी इसे एक मर्तबा दोहरा लीजिए। जी जुवेरिया। मैं पढ़ दूं? मैं एक बार पढ़ने से थोड़ा फायदा हो जाता है। जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए। मैं भी पढ़ूंगी। सर ये आयत मुबारक पढ़ लें, एक सिस्टर अगली आयत मुबारक पढ़ेंगी, ठीक है? जुवेरिया पढ़ लें। ठीक है जी। इन्नल्लज़ीना कफरू, इन्ना बेशक अल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, आ अंज़रतहुम, आ चाहे अंज़रतहुम आप डराए उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम या आप ना डराए उन्हें, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ला युमिनून, ठीक है? युमिनून, ये जो हमजा है ना, ये बहुत लाडला है, ये कहता है मुझे जैसे लिखा गया मुझे वैसे ही पढ़ना है आपने, अच्छा ठीक हो जी, गया जी? युमिनून, हाँ जी, युमिनून। युमिनून, ये जब हमजा के ऊपर जज़म होती है तो थोड़ा सा झटका आ जाता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा तजवीद के रूल भी मैं बताती जाती हूँ साथ साथ। अच्छा जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और पर उनकी आंखों के, यानी कि उनके आंखों पर, उनके कानों पर और उनके दिलों पर, ये तीन हमने चीजें पढ़नी है, जिसमें से कानों और दिल के ऊपर क्या है? मोहर है। वअला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर पर्दा है। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है। अब हम इसको लफ्ज का लफ्ज भी देख लेते हैं। अच्छा जी, खतमा, खतमल्लाहु, खत्म कहते हैं मुहर लगाने को, ठीक है? इसका टेबल भी हम देखेंगे। खतमा, अब इसको आप देखिए इस तरह से, खतमल्लाहु, जैसे हमने कहा था समीअल्लाहु। अब ये जो पेश है, पेश ये उसी तरह से जो हमने एक प्रैक्टिस की है ना अपने ग्रुप में, कि ये जब पेश आ गई हमारे पास, इसमें अल्लाह के ऊपर पेश है, तो हमने ये जो माजी है, ये जो हमारे पास फेल है, जरूरी नहीं माजी, जो फेल है इसको हमने इसमें से इसके फाइल के साथ मर्ज कर देना है। जैसे खतमा, उसने मोहर लगाई, अल्लाह, अल्लाह ने, अब हम तर्जमे को जोड़ देंगे, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब ये जो उस वाला तर्जमा खत्म हो जाएगा, अब होगा अल्लाह ने मोहर लगा दी, खत्म अल्लाह अला पर, जो हम अला का टेबल देखते आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद है कुलूब, कुलूब दिलों, और हिम उनके, ठीक हो गया जी? कुलूबिहिम, जैसे हमने कहा था रब्बुहु, रब्बुहुम, ये उसी तरह से कुलूबिहिम, जहां पर ये जेर आ जाती है यहाँ पर फिर हुम की बजाय हिम कर लिया जाता है, लेकिन माना में मैंने उस दिन भी बताया था माना में फर्क नहीं आता, ठीक हो गया? अब ये जो बी है कुलू बी हुम पढ़ना मुश्किल है, तो ये आसानी के लिए थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां की गई होती हैं। आपको ये इसी तरह से पूरा फिक्रा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसके टुकड़े बनाए, तो टुकड़े बनाते वक्त आपने खास ख्याल रखना है। जब आप देखिए खातमा फेल है, अल्लाहू इसम है, कैसे पता चल रहा है? कुछ अस्मा ऐसे हैं जो जाती नाम होते हैं, जिनका हमें कोई अल या तनवीन के बगैर भी पता चल रहा होता है। अला इसमें हर्फ है, यानी कि एक दो तीन ये अलग हो गए। इसके बाद कुलूब हिम के मजीद फिर हमने टुकड़े कर लेने, कि कुलूब एक अलग वर्ड है, उसके बाद हिम, यानी कि इसके एक दो तीन चार और पांच टुकड़े हमने करने हैं। उसके बाद है वा अला समई और हिम, इसके भी देखिएगा, वा एक अलग लफ्ज है, अला एक अलग, ये दोनों हर्फ हैं। उसके बाद समई, ठीक है? समई उनके कानों पर, समई उनके कानों पर, समई जो है ये भी उसी तरह से जैसे कुलूबी दीनी, इसी तरह से समई हिम। और यहाँ पर भी इसके हम चार टुकड़े करेंगे, जैसे हम कहेंगे दीनूहू, दीन और हु को हम अलग कर देते थे, कलमुहू, इसी तरह से समई और हिम, हम इन दोनों चीजों को अलग अलग कर देंगे। वअला अबसारिहिम गिशावतुन, व अलग है, अला अलग है, इसके बाद अबसार यानी कि आंखें, हिम उन सब की, और गिशावतुन, गिशावा कहते हैं
पर्दे को। ठीक हो गया जी। अब इसमें ये बात बड़ी अहम बताई गई कि गिशावत उनका मतलब पर्दा है। याद रखें कि वो देख नहीं सकते थे, तो क्या वो अंधे थे, या फिर ये भी ऐसे था कि जैसे दिल का पर्दा होता है इसी तरह से उनकी आंखों पर अल्लाह ताला ने एक पर्दा डाल दिया, यानी कि ज़ाहिरी आंखों से तो वो देख रहे थे लेकिन उन तक जो हिदायत है वो पहुंच नहीं रही थी। अब आपने याद रखना है कि कानों और दिलों पर मुहर है और आंखों पर पर्दा है। इसके बाद सवालात में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इसको साथ साथ समझा करें। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं वलाहुम, इसके टुकड़े करें, कैसे टुकड़े बनाएंगे आप इसके? वालाहुम। अल्हम्दुलिल्लाह, टुकड़े बहुत प्यारे बना लेते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अजाबुन, दो पेश से पता चल रहा है कि ये इस्म है। अजीमुन का भी दो पेश ने बता दिया कि ये एक इस्म है। मोमिनों की दिलों में तकवा होता है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है कि मोमिनों के दिलों में क्या होता है और काफिरों के दिलों तकवा पर क्या होता होता है। है। ठीक है, मोमिनों की दिलों में तकवा होता है। हमने पीछे जो मुत्तकीन की सिफात पढ़ी, तकवा उसी में से, उसी से और मिलता काफिरों के जुलता दिलों में लफ्ज है। बीमारी होती है। हाँ जी, और काफिरों के दिलों पर मोहर है और मुनाफिकों के दिलों में बीमारी होती है। अच्छा जी, ये बीमारी कौन सी होती है इसके बारे में भी हम देखते हैं। काफिरों के लिए दुनिया में कौन सी सजा है? उनके दिलों और कानों पर मोहर और आंखों पर पर्दा। अब वो ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल हो सकता है। इसके बारे में वो जो एक आयत मुबारक है, सुम्मुन बुकमुन, आगे आ भी जाएगी, इसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी कि वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसके बारे में मुकम्मल बताया गया। दिल क्या है? दिल मरकज है। हिदायत किसी के दिल तक बात पहुंचती है तो इससे पता चलता है ना कि अब वो दिल की जैसे मानेगा तो वो अल्लाह ताला से डरेगा भी, आखिरत की भी तैयारी करेगा। जैसे कहा जाता है ना कि जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज छोड़ी जाए, एक जुम्मा को छोड़ दी तो दिल पर एक नन्हा सा स्याह निशान जैसे तिल की बराबर लगा दिया जाता है। फिर छोड़ा, यहाँ तक कि दिल स्याह हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो चाहे भी तो फिर नमाज के लिए या जुम्मा के लिए नहीं जाते। यानी कि हिदायत का एक वक्त है। अगर जैसे ये नमाजों की तरह कजा हो गया तो उसके बाद जिसकी कहते हैं अदा निकल गई, उसकी कजा भी फिर रह जाती है। अगर दिल पर मोहर लगा दी जाए या कोई निशानी है तो उसके ऊपर कोई निशानी, कोई नसीहत असर नहीं कर सकती। जैसे हम कहते हैं पत्थर दिल हो जाना। आखिरत में भी अजाब मिलेगा, सिर्फ दुनिया के लिए ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का इनकार किया इन लोगों ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान का इनकार किया और दर हकीकत हिदायत का इनकार कर दिया। अब आखिरत में क्या है? बड़ा अजाब है, खास बताया गया, अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है। जब अल्लाह अजाब की बात करे तो वो खुद ही एक बहुत भयानक, हमारे अंदर सोच होनी चाहिए कि बहुत भयानक अजाब होगा। और इस पर अगर अजीम यानी कि बड़ा अजाब कह दिया जाए तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसा सख्त अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया की आग देखें, एक वो माचिस की जो दिया सलाई है, उससे जरा सा लग जाए तो काफी देर तक पता चलता है। तो देखें तो ये तो उसका कोई जिसको कहते हैं कि हजारवां शायद लाखवां कोई हिस्सा भी ना हो कि वो इतनी सख्त और इतनी गर्म जला देने वाली, पिघला देने वाली आग होगी। अच्छा जी, जो सिस्टर पहले कह रही थी पढ़ना चाह रही हैं वो पढ़िएगा, मैं इसकी एक दफा तिलावत कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब आप ऐसे कीजिएगा, ये जो जिस तरह से फिक्रे बने हुए, एक एक फिक्रे को बना के इसका तर्जुमा कर लें। खतमल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला ऊपर, कुलूबिहिम उनके दिलों के, व अला और ऊपर, समइहिम उनके कानों के, व अला और ऊपर, अबसारिहिम उनकी आंखों के, गशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीम बहुत बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये देखें, जो हमने पिछली आयत मुबारका पढ़ी इसमें डराने की बात की गई ना, तो देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डरा रहे थे लेकिन वो डरते नहीं थे। इसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी कि अब ये इनको हिदायत मिलनी ही नहीं, इनको हिदायत नसीब होनी ही नहीं है।
तो एक मरतबा मिलके हम अल्लाह ताला से इस बात की दुआ भी मांगते हैं और माफी भी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में ना करना कि जिनको हिदायत नसीब नहीं होती, और हमें उन लोगों में शामिल रखना कि जो स्वालिहीन है। हम इसकी दुआ वैसे भी कर चुके हैं ना कि 4 जो दर्जा बदर्जा जिनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि जिन पर अल्लाह ताला की खास रहमत होती है। तो ये भी है कि इंसान से गलती हो जाती है तो माफी भी मांगनी चाहिए और इस्लाह की गुंजाइश रहती है। लेकिन ये लोग जो थे इन्होंने मुकम्मल इनकार किया था, इनके लिए इसके बाद फिर हिदायत की यानी कि इस्लाह की गुंजाइश भी नहीं रही थी। अच्छा जी, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं। और इसी तरह से अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी, उनकी आंखों पर पर्दा है, उनके लिए बड़ा अजाब है ये। अब आपको जैसे रवानी में तर्जुमा वो भी बता दिया गया कैसे आपने पढ़ना है, इसको याद रखना है, हर्फ ब हर्फ का करेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा। अच्छा जी, इसमें ना आप लोगों ने जो निशान लगाने हैं वो अगर सिर्फ इसी पे लगा लें, इन्नल्लज़ीना कफरू, ठीक है, काफिरीन को हिदायत नहीं, आप इसको जिन लोगों ने कुफ्र किया हाईलाइट अगर इतना भी कर लेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये हमने जो इशारा पढ़ा है काफिरीन को हिदायत नहीं, उसके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा जी, ये हम सारा पढ़ चुके। अब हम देख लेते हैं कि हमारी दुआ क्या होनी चाहिए और इसी तरह से हमारा प्लान क्या होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री वल अज़ाबिल क़ब्री। अच्छा जी, आप लोगों में से कोई मुझे बताए अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े किए थे हमने? एक ही। एक ही एक टुकड़ा, था, एक एक ही ही, टुकड़ा, एक पूरा एक टुकड़ा नहीं मुकम्मल किया एक वर्ड है ये। मुकम्मल कलमा, ठीक है, अल्लाहुम्मा। और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारने के लिए, और किसी के लिए हम यूज भी नहीं करते। अच्छा जी, हाँ जी, इन्हीं के टुकड़े कीजिए। दो। इन्हीं में 2 टुकड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आऊज़ु के टुकड़े एक। एक ही है, वो अपनी तरफ वाला, ठीक हो गया। बीका के टुकड़े कीजिए, दो। 2। इसके बाद है मिनल कुफ्री, ये एक एक लफ्ज में पता चल गया, मिन एक अलग है, फिर इसके बाद अल कुफ्र, इसके बाद वाओ एक हर्फ है, अल फक्र, इसके बाद वा अजाब वल कब्र। ये आप लोगों को इस तरह से आने नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से, फक्र फाका से और कब्र के अजाब से। दुआएं आ सकती हैं, लेकिन आपको ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि आप इस दुआ में से इसके टुकड़े बनाइए, ठीक है। ये तो सिर्फ हम अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए कि चले हमें ये आता है तो हम चले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आपने लेकिन ये दुआएं अगर याद करें तो बेहतरीन दुआएं हैं, ये मसनून दुआएं हैं, ठीक हो क्या जी। आसान प्लान हमारा क्या है कि इंशाअल्लाह मैं सच सुनूंगी, चाहे वो मुझे तकलीफ दे, चाहे वो मेरे मुआमिन की तरफ से हो या मांगने वाले की जानिब से, यानी कि अपने अंदर सच सुनने और सच बोलने का हौसला पैदा करना है इंशाअल्लाह। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने अस्मा और अफ़आल पढ़े, अस्मा होते बहुत सारे हैं, जो पहली पहली मर्तबा हम पढ़ रहे थे हम उनको देखते हैं, ठीक हो गया जी। कुछ अस्मा हम पढ़ेंगे जैसे क़ल्ब, क़ुलूब, बसर, अबसार, ये जो जमा का निशान ये हमें QC1 से बता रहा है कि इनकी जमा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये टूठी पुठी वाली जमा यानी कि मुकस्सर वाली है या ये जमा वो वाली है सालिम? मुकस्सर है। मुकस्सर है, क्योंकि जो 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 सालिम होती है उसमें क्या फर्क होता है? अगर ये इसमें चेंज नहीं होता, वाहिद इसमें अल्फाज याद के होना वही हरूफ ये रहते पूरा हैं और का उसके पूरा अंदर लफ्ज इजाफा होना होता था, है। इसके साथ सिर्फ वाव नून और या नून लग जाना था। लेकिन यहाँ पर ये जो लफ्जों का थोड़ा थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, इससे हम इसको कह देते हैं जमा मुकस्सर है, यानी कि टूटी हुई जमा है। मकसूर हम पढ़ा भी करते थे, जिन लोगों ने उर्दू में पढ़ा हो मैथ, जब हम तकसीम के सवाल यानी कि डिवाइड वाले क्वेश्चन किया करते थे तो हम पढ़ा करते थे मकसूर। सिस्टर क्या बोलेंगे? जमा जमा मकसूर, जमा मुकस्सर मैं भी मकसूर कहने लगी, मुकस्सर, ठीक है। ये हम आपको लिख के भी बताते हैं भी। हाँ जी, लिख के जी बता दें, थैंक यू। मिसेज ने हैंड रेज किया है जी, मिसेज। जी ये मैंने मेरा नाम मोना है। अच्छा अच्छा, जी मैं मुन्ना, मैंने मैं नहीं मोना। मोना, ठीक हो गया जी। जी जी मैंने ये जो अभी आपने
बताए ये पिछली स्लाइड में, वो मुझे नहीं समझ में आया कि हम, आप जमा कह रही थी ना, ये मैं कह मुकस्सर रही क्या, थी जमा मुकस्सर, और तो एक हम इनको हम कहते हैं जमा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच ये कौन से होंगे? ये ब्रोकन होते हैं ना, ये वाले, ये वाले जो मुकस्सर वाले होते जैसे हैं। इंग्लिश में फुट फीट होता है तो तीत होता है, जो अलग तरह से बनते हैं, वो वाले फोर हैं ना फीट, ये। अच्छा। हाँ, ये अच्छा, इस तरह से मैं आपको सालिम का भी बता देती, जैसे हम काफिर का बनाएंगे ना, काफिर, अब काफिर, काफिर जी, का क्या बनाएंगे, कौन बताएगा? काफिरून, काफिरीन, फिरून, काफिरीन। काफिरून और काफिरीन। काफिरीन। काफरीन। अच्छा जी, अब एक जमा और भी होती है काफिर की, कुफार, कुफार। कुफार। अच्छा जी, अब आप देखिए फर्क, ये वाली जो है ये हमारी जमा मुकस्सर है, और ये वाली जो है सालिम ये है। सालिम है। सालिम बकरा, सालिम गाय, सालिम मुर्गा, ये अब आपकी ईद भी आ रही है ना, ये सारा कुछ उसमें भी समझ आ जाता है। ठीक है, रान, सालिम, सालिम। ठीक है, ये जो जिसमें पूरा हर्फ आ गया, अब ये देखिए काफिर पूरा का पूरा आ गया। ओके। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने वाव नून और या नून का इजाफा किया है, लेकिन यहाँ पर काफिर पूरा नहीं है, थोड़ी बदल गई ना चीज, काफिर से कुफार हो गया। ठीक हो गया सिस्टर्स? जी जी, सिस्टर मैं अब चलें, एक ठीक है, बात थैंक बताना यू। चाह रही हूँ। जी जी जी। जिस तरह से हम नाउन्स में कहते हैं रेगुलर नाउन के प्लूरल बनाते हैं, और इर्रेगुलर ये इर्रेगुलर नाउन के प्लूरल है। इरेगुलर है, ठीक हो गया जी, ये इस तरह से भी ओके, समझ लिया करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है हमारा पहला टेबल, इसमें से जो हमने देखा, ये है 3 हरफी सेहतमंद अफाल। ये आजकल ये ऐसे दिया जा रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना अभी तक हम आयत नंबर 7 तक पढ़ चुके, यहाँ अभी तक कोई ना कमजोर फेल आया नहीं है। जब कमजोर फेल इसमें आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद एक और स्लाइड बना करेगी जो होगी कमजोर अफाल की। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ आपको सही, नजर आ रहा है, 3 हरफी सेहतमंद अफाल, ये कौन से होते हैं? फतहा, नौकरा, दौराबा, सामिया। अब इन्हीं औजान पर, इसी वजन पर, इसी पैटर्न, इसी सांचे पर कौन सा टेबल बना रहे हैं हम? कफरा। कफरा का टेबल हमारा बाप नून पर जाएगा, नौसरा पर जाएगा, रूट लेटर होंगे काफ, फा और रा। रा। ये क्यों? क्योंकि ये 3 हरफी है, सेहतमंद है, इसमें कोई कमजोर नहीं है। तो ये जो हमारा पहला माजी वाला जो होता है ना, यही हमारे रूट लेटर बन जाते हैं। ये सेहतमंद की ये एक खूबी होती है। इसके रूट लेटर जो आपको सामने नजर आ रहा है वही है इसके रूट लेटर। अब यह है कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर और कुफ्र। कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। अब हम आ जाते हैं खातमा। खातमा है बाब दुआद पर, खाता और मीम, ये हमारे रूट लेटर हैं। अच्छा जी, ये आपको छोटी छोटी साथ काउंटिंग भी 4, 6, 1 और 6 नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये जो अबवाब है, इनमें से कोई डिफरेंट कोई भी हो सकता है। कुरान मजीद में 461 मरतबा 461 टाइम काफरा वाले टेबल में से, और 6 मरतबा खातमा में से। अब हम कहते थे दौराबा यदरिबु, अब कहें खातमा यख्तिमु। इख्तिम, खातिम, मख्तूम और खत्मुन। ठीक है, खातिमुन, मख्तूमुन और खत्मुन। जब हम तनवीन लगा लेते हैं तो इसको पढ़ना भी आसान हो जाता है और पहचान भी हो जाती है। ये जो रेड वाले 3 अफआल हैं, जबकि अस्मा यानी कि इसम फाइल, इसम मफूल और इसम मस्तर। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारा जो कुरान पार्ट है कंप्लीट हुआ। अब आप मुझसे पूछ लीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेट। पानी वानी पी लीजिए और अपने हाथ बिल्कुल खाली कर लीजिए, अब हमने इशारे करने, क्योंकि आज का ये जो हमारा टेबल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह मजा आएगा पढ़ने का। शुरू कर ले जी, सिस्टर रुबीना। जी सिस्टर, ये पूछना है कि अभी आपने कहा कि आऊज़ु बिका जो है वो जी एक ही वर्ड है,
نہیں आऊजु आऊजु आऊज एक बार, ठीक है, हाँ जी, आऊज एक है, बिका बिका ठीक है, बिका तो फिर एक अलग से उसके फिर टुकड़े हो जाएंगे। जी जी बिका ठीक, दो हाँ हो जी जाएंगे, बी, हाँ जी या वाह, बिस्मिल्लाह जी वाला बी, ठीक है, बीही बीहिम बीका, ठीक है, वो जी। फिर मजीद टुकड़े हो जाएंगे। मुझे शायद सुनने में कंफ्यूजन हो गया, तो उस वक्त मैं कंफ्यूज ही बैठी हूँ कि ये कैसे हो अच्छा सकता है हाँ जी हो जाता है, कोई मसला नहीं, पूछा करें, जी सवाल जी करेंगे तो ही जवाब मिलेंगे ना। फिर अगर जैसे हमारी कोई गलती होगी ना तो हम कहते हैं उस गलती को निकालना नहीं है, उसको निकाल ही देना है, ठीक है ना बिल्कुल जी। सही, जी, चले शुरू ताकल्ला करें फिर हम। जी आज का हमारा टेबल है काना। काना आपको बहुत मर्तबा नजर आएगा, यानी कि काना से मिलते जुलते इसके जितने भी सीगे हैं, चाहे वो मुअन्नस के हों, चाहे वो अमर के हो, नहीं के हो, चाहे वो इसके इसम फाइल हो, मफूल मफूल इसका होता नहीं है, ठीक है, और मस्दर मफूल अभी हम देख लेंगे, इसका होता नहीं है। इस सबक में हमने पढ़ना है काना। एक दफा स्माइल दीजिए सारे, क्योंकि ग्रामर हमने पढ़नी है आसान तरीके से, और इतनी मर्तबा हमने ये रिपीट करना है कि इंशाल्लाह ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हमने देखा कि कमजोर हर्फ वाओ या और अलिफ है, इसको मैं बार बार बताती हूँ, ये अलिफ है, ये हमजा नहीं है, ठीक हो गया जी। हमजा और इसके बारे में, अलिफ के बारे में इंशाल्लाह हम अपने आमारा के टेबल में सीख लेंगे। हमने देखा वहाबा वादा कौला, कमजोर फेल। कमजोर फेल क्यों है? क्योंकि देखिए इसके रूट लेटर जो बनते हैं वाओ हा बा, ठीक है, एक कमजोर आ गया। वादा में भी इसी तरह हुआ, जबकि कौला में क्या हुआ, हमने कहा कि ये जो अलिफ है ये रूट लेटर का हिस्सा नहीं बन सकता, तो इसको क्या किया गया, इसको बदल दिया गया वाव से। कमजोर अफाल के सिलसिले में दो बातें क्या है, पहली तो ये कि ये उसी तरह से बनेंगे जैसे फतह यफ्तहु, मसरा यंसुरु, ज़रबा यदरिबु, सामिया यस्माउ। और उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि इसमें ये एक कोई ना कोई एक कमजोर लेटर आ जाता है, वो क्या होता है, वो होता है या वाओ या अलिफ, जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा होता है। अब ये क्या करते हैं, कमजोर होते हैं, ये हरकत बर्दाश्त नहीं करते, ये गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी कि ये टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये तब्दीलियां क्यों हैं? ये तब्दीलियां इसलिए ताकि हमें बोलना भी आसान हो जाए, समझना और पढ़ना भी आसान हो जाए। चलिए जी, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह नसरा, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। गौरबा सामिया। अब आप लोग मुझे, आप में से कोई एक सिस्टर, ये जो हमारी QC2 वाली फ्रेज है, ये वजीहा, जी सिस्टर वजीहा ने सबसे पहले हैंड रेज किया। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह नसरा, वरना मार पड़ेगी, कान खोलकर सुन लो, गौरबा समिया। ठीक हो गया जी। अब QC2। वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ हदा। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर नौरीन ने हैंड रेज किया है, जी सिस्टर। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, उस इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हादा, हदा, ठीक है, हादा नहीं हदा। हदा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा टेबल है वो है हदा। काना। इसमें क्या है, इसमें अलिफ जो है यानी कि जो हमारा कमजोर हर्फ है वो बीच में है। जी सिस्टर रेहाना। जी मैंने करा था हैंड रेज, इसलिए कि वो मैं भी वो पढ़ लूं जो पीछे वाला स्लाइड थी। आप जी जरूर जज़ाक। पढ़िए, जरूर जी पढ़िए। जी। वहाबा उसने देने का वादा किया, क़ाला दआ, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, वअदा ज्यादा, हादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, हादा अब हमने हदायत पता की। है क्या करना है, अब हमने जी ये करना है, जी। ये क्या है, वहाबा। वहाबा उसने अता किया, अता उसने किया, अता किया, ठीक है। और ये वादा क्या है, वादा वादा उसने किया, उसने वादा वादा किया। किया,
अब हम इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखें, अल्लाह ने अता करने का वादा किया, ठीक है, उसने, हाँ जी, उसने वादा क्या किया? उसने किया वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया। इसमें वहाबा भी आ गया, वादा भी आ गया। बल्कि कहा, कौला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया, ठीक है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। ये हमने टेबल अभी पढ़ना है ज्यादा का, ठीक है। इसके बाद है दुआ, इसीलिए दुआ करो। इस चीज की हदा, हिदायत की। अभी चूंकि हमने सारी पढ़ी नहीं है ना, शायद इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी जब हम सारी टेबल पूरी कर लेंगे ना। हाँ, इसको हम इसकी तरतीब से पढ़ते हैं। तरतीब खराब करेंगे ना, ये हमारा फिर फ्रेज खराब हो जाएगी। अच्छा जी, ये माँ काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन। माँ हमने पढ़ा था माजी के साथ नफी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इब्राहिम नहीं थे यहूदियों में से या नसरानियों में से। यानी कि काना का हम लफ्जी मतलब पढ़ेंगे वो था, ठीक है। अब पूरा टेबल देखते हैं कैसे पढ़ेंगे हम। ये हमने टेबल करना है कौला की तरह, जैसे हमने कौला का टेबल किया, यानी कि हमने कहा था कौला, कौलू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना। इसी तरह से काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। जी सिस्टर कमर 9। सिस्टर मैं इसको रिपीट करूं? जी बिल्कुल कीजिए। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। और मुअन्नस के लिए हिया कुंता, हमने कानत, कहा था कानत। हमने कहा था कि जो ठीक फेल है। माजी है ना, फेल माजी, वो पूरा और उसके साथ ता लगा दी, बस उसके ऊपर जज्म, और कोई तब्दीली नहीं। अच्छा जी, दो सिस्टर के हैंड रेज हैं मैंने रेजर बना दिया। सिस्टर जवेरिया जी, सिस्टर आप भी पढ़ना चाह रही हैं? हाँ जी, ये पढ़ूँ या अगला पढ़ूँ? ये पढ़ ले तर्जमे के बगैर, इसको रवानी से पढ़ें। कान, काना, कान, कानी, कानू, कुंता, कुंते, कुलता, कुंतुम, कुन्ना, कुलतु, कानत। कुलतुम, कुन्ना। अच्छा जी, अब आपको इसमें से कुंतु से कोई आयत मुबारका याद आ रही हो? कुंतु आपने किसी में पढ़ा हो? इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ला अच्छा इलाहा जी, इल्ला अंता इन्नी सुब्हानका इन्नी कुन्तु बेशक, मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, कुंतु मैं ही था, ठीक है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमीन में से जालिम हूँ। आयत देखिए करीमा। कितना अच्छा लगता है कि आपको एक वो आपने फेल पूरा कर लिया, आपको पता चल गया कि ये जो कुंतु था ये मेरी तरफ की बात हो रही थी। ठीक हो गया? ये छोटी छोटी चीजों को कुरान पाक से जरूर ढूंढा करें, मिलाया करें। और अभी इसका एक और भी आपको बड़ा मजे का याद आएगा। किसी को याद आ गया तो पहले भी बता सकता है मुझे। अच्छा जी, माजी की जो चाबी है वो काना है, सोच भी सकते हैं आप इतनी देर। काना तव्वाब अभी तो पढ़ा था हमने सूर्य नसर में। हाँ जी, वो भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा जी, कुन का जरा तर्जमा कीजिए। वो सब तुम तुम सब थे। सब थे। हाँ तुम जी, सब तो थे। जी जी। हाँ जी, अभी हम जब अगला करेंगे ना, उससे भी आपको याद आएगा, मुदारे से भी याद आएगा, और इंशाल्लाह फिर अमर से भी याद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह के ये एक मर्तबा। और आज हम जो मजे की एक चीज सीखने वाले हैं वो ये है कि हमने QC1 में टेबल किया था आमीला, ठीक है, आमीला या अमलू। अब मुझे ये कोई या अमलू ये पूरा टेबल सुनाए। यामलू, यामलू, यामलूना, तामलू, अमलू, तामलूना, नअमलू, नाम। नअमल तामलू, और हिया तामलू। या तअमलू। अब हमने काना के टेबल में ये क्यों किया, इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, एक सिस्टर ने हैंड रेज किया था। जी सिस्टर, आपको कुछ कहना? सिस्टर वजीहा थी आई थिंक। नहीं पढ़ना था टेबल। हाँ, वो भी पढ़ते हैं। अभी हम इस ठीक है। टेबल को जरा समझ लें, फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने मुदारे लिया है, ठीक है। अब आपने ये बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि हमने जो एक अलग से टेबल लिया है वो कौन सा लिया है। वो हमने लिया है मुदारे। अब ये चाहे यामलू हो, चाहे ये यफ्ताहू हो, यंसुरू हो, कोई सा भी टेबल हो, हमने क्या करना है, हमने इसका मुदारे लेना है।
ٹھیک ہے. اب اس مدارے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس مدارے کے ساتھ اپنا ایک ٹیبل کانا والا وہ جوڑنا ہے. دیکھیے اب کانا والا ٹیبل جو ابھی ہم نے ماضی کیا, ٹھیک ہے, کانا کے ٹیبل کا ماضی لینا ہے اور اگلا جو بھی آپ کا لفظ ہے اس کا ہم نے لینا ہے مدارے. اس ترتیب کو اسی طرح سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کانا وہ تھا, یعملو وہ کرتا ہے. اب کیا ہوگا, اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدلے گا. یعنی کہ اب ایک اور چیز جو یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے کانا کی بات کرنی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ جو چیز ملانی ہے وہ کیا ہے, وہ ہم نے کانا کے ساتھ مدارے کا بھی پہلا ہی صیغہ ملانا ہے. ٹھیک ہے, کانا یعملو, جب ہم نے کہنا ہے کانو تو پھر ہم نے یہاں سے بھی مدارے میں سے یہ والا اشارہ, یعنی کہ کانا یعملو. اگر ہم کہیں گے کانو تو پھر ہم کہیں گے یعملونا. اسی طرح سے اسی پوری ترتیب اسی طرح سے بنائیں گے. کنتا ہوگا تو تعملو, کنتو ہوگا تو اعملو, کنتم ہوگا تو تعملونا, کننا ہوگا تو نعملو. یہ سسٹر جویدیہ. میم میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہاں ہم آگے جیسے ینصرو بھی لگا سکتے ہیں, وہ مدد بالکل کرتا تھا. لگائیے, ابھی لگا لیتے ہیں. یہ دیکھیے جی, اب ہم یہاں ینصرونا, پر لگا لیتے ہیں. ہاں جی, یفتحو, ینصرو. ٹھیک ہے, اور جب ہم کانو کہیں گے تو ہم کہیں گے وہ مدد کرتا تھا. ینصرون ینصرونا. اسی طرح وہ سے مدد تنصرو, یہ کرتا پورا ٹیبل ہم اسی طرح سے کرتے جائیں گے. اب یہاں پر ایک اور چیز اس میں ہوگی, وہ کیا ہوگی کہ اس کے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سسٹرز. اب یاد ہم نے کیا رکھا, ہم نے کانا کے ٹیبل کا ماضی لیا اور کسی بھی ٹیبل کا مدارے لیا. اس کو ہم کہیں گے یہ ہم نے بنایا ہے ماضی استمراری. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں, پاسٹ کنٹینیو ٹینس. ٹھیک ہے, ماضی استمراری. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ بے شک کانا یعملو ہے, حال والا ترجمہ تھا, لیکن یہ تاکید کے لیے, یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ پچھلے زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کانا کے ساتھ ایک ٹیبل ہم نے جوڑا, یعنی کہ مدارے سے. اب ہم نے کانا کے ساتھ عاملہ نہیں جوڑا. ٹھیک ہے, کانا کے ساتھ ہم نے فتح نہیں جوڑا, ہم نے جوڑا ہے یعملو. اس طرح سے بھی بنتے, لیکن ان کے نام اور ان کی جو باقی چیزیں ترجمے وغیرہ چینج ہوں گے. یہاں ہم سیکھیں گے ماضی استمراری. یہ دکھا دوں آپ کو, پاسٹ کنٹینیوس. ہاں جی, پاسٹ کنٹینیو, ماضی استمراری, یعنی کہ بات چل رہی ہے, اکثر کیا کرتے تھے, وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس طرح سے بات بتائی جا رہی ہے. اچھا جی, اب یہ پورا ٹیبل کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں باجی. میں پڑھوں باجی. جس سسٹر نے پہلے کہا وہ پہلے پڑھیں گی, پھر جو دوسری سسٹر وہ پڑھیں گی. 3 لوگوں کے ہینڈز ہیں, یہ پڑھ کے ہم ایک اور ٹیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی کانا کا مدارے بھی کرنا ہے. کانا یعملو وہ کرتا تھا, کانو یعملونا وہ کرتے تھے, کنتا تعملو آپ کرتے تھے, کنتو اعملو میں کرتا تھا, کنتم تعملونا آپ سب کرتے تھے, کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. اور اگر میں کہوں کہ اب ہم یہاں پر جو مؤنث والا بھی جوڑ لیتے, کانت کانت تعملو. تعملو. الحمدللہ جی, الحمدللہ جی. ایک اور سسٹر بھی کرنا چاہ رہی تھی. اب میں نے نام اس طرح سے دیکھے نہیں کہ 4 لوگ تھے. جی میں نے بولا تھا ریحانہ. ٹھیک ہے, ریحان. کانا یعملو وہ کرتا ہے, کانو یعملونا وہ اس کو کرتا بدلنا تھا. نہیں, کرتا تھا, اچھا ماضی کی بات ہے. جی وہ جی جی ماضی جی ہی نہیں ہے, اور وہ اکثر ماضی کے کام کیا کرتے تھے. جی وہ کرتا تھا. کانو یعملونا وہ کرتے تھے, کنت تعملو آپ کرتے تھے, کنتو اعملو میں کرتا تھا, کنتم تعملونا آپ سب کرتے تھے, کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. اور اس کے لیے فیمیل کے لیے کانت تعمل, کانت تعمل. اچھا سسٹرز, ہاں سسٹرز, آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, وہ کرتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا.
ٹھیک ہے, یہ ایک अच्छा ہی ترجمہ مانا جائے گا. وہ کرتا تھا, जी کہیں ठीक کہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا وہ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, जी اب ठीक ہم اس کا مضارع بھی کر لیتے ہیں. اس کی جو پریکٹس ہم انشاءاللہ بہت زیادہ کریں گے. اسائنمنٹ میں بھی ہم انشاءاللہ یہی کریں گے کہ اگلا جو مضارع ہے وہ آپ چینج کر کے کانا کے ساتھ ملا لیں. اب چاہے سب اپنا میم یہ جو آپ نے اس سے پہلے آیت پڑھی تھی حضرت ابراہیم والی, اس میں بھی یہی والا صیغہ نہیں استعمال ہوا ہوا؟ ماں کانا تھا, وہ ماں کانا, ٹھیک ہے, اس میں وہ بات وہاں پہ ہو گئی تھی ماں کانا ابراہیم. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہودی اور نصرانی وہ اسما تھی. یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ قرآن پاک میں آتا جائے گا. یا آپ لوگ خود مجھے اپنے مصحف سے لے کے تصویریں بھیجا کریں. یہ بہت اچھی اسائنمنٹ ہوتی ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے آپ کو نظر آئے, فوراً کلک کریں, پوسٹ کریں اسے. بہت مزہ آتا ہے یہ جب ابھی ملتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم نے یہ جو پڑھا تھا کلاس میں یہ آج ہمارے سامنے آ گیا. بہت خوشی ہوتی ہے. چلیے جب سب انمیوٹ کر کے آنسر کیجیے گا. حل کانا یعملو, نعم کانا یا حل کانوا یعملون. نعم كانوا يعملون. اب یہ جو کرنا اب دونوں بدلنے ہیں. ٹھیک ہے, حل کنتا تعملو, نعم نعم کنتم تعملون. تعملون. ہم نے ماضی بھی بدلنا, مضارع بھی. ٹھیک ہے, حل کنتم تعملون, نعم حل كنا نعمل كنا نعمل. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھتی ہوں, حل کانوا یعملون خیرا, کیا وہ سب نیکی کے کام کیا کرتے تھے؟ نعم كانوا يعملون. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. اچھا جی, اب ہم نے بنانا ہے اس کا مضارع. ہم نے کہا کہ کانا کا ٹیبل قولا کی طرح ہے, تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ یہ باقی جیسے یا کانا یا کانو یا کونو یقینو کیا صحیح بنے گا. ہم نے کہا یہ قولا کی طرح بنے گا, تو ہم نے بنایا تھا یقولو, تو یہاں بن جائے گا یقونو. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس سے مزید ہم ذرا سا کہ آپ اس کی آسانی کے لیے ایک بات بس یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ قرآن مجید میں اس طرح سے آئے ہیں, اسی لیے ہم نے ان کو اسی طرح سے, باب نون پر ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں یا کے بعد نون, اس کے بعد صاد را. اب یہاں پر ہمارے پاس چونکہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اب یہ جو الف تھا یہ تو ختم ہو گیا, ہمارے پاس صرف 2 رہ گئے تھے. اب یہ واؤ کی مرضی ہے, وہ جہاں بھی آ جائے. تو کیا جی, اپنی جگہ بھی بدلتے رہتے ہیں. ہم گئے کانا یکونو, ٹھیک ہے, یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, اور ہیا تکونو وہ عورت ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہوگا یہ حال کا بھی ہوگا اور اسی طرح سے مستقبل کا بھی ہوگا. وہ ہوتا ہے یا ہوگا, تو یہ دونوں ترجمے ہو جاتے ہیں. دوبارہ سے دیکھیے, یکونو یکونونا, تکونو اکونو تکونونا, نکونو. اب آپ پڑھیے جی. میں پڑھوں؟ اچھا جی, میں ذرا آپ لوگوں کے نام اپنے سامنے رکھوں, مجھے اندازہ ہو جائے. جی, سسٹر روبینہ اور سسٹر ریحانہ, آپ دونوں کے ہینڈ ریز ہیں, تو سسٹر آپ ترجمے کے بغیر اس کو پڑھیے گا. ٹھیک ہے, دونوں سسٹر پڑھ لیں گے. یکونا یکونونا یکونو, ٹھیک ہے, یکونو. یکونو, اوکے. تکونو اکونو تکونون, نہ نہیں بولا جائے گا, بولا تکون, جائے گا, جی تکونونا بولا جائے گا. جی جی بولا جائے گا. ہاں جی, نکونو. ٹھیک ہو گیا جی. اب سسٹر یہ سسٹر نے کیا تھا, تو اب سسٹر ریحانہ کریں. جتنی آپ کے سامنے یہ جو علامتیں ہیں نا, جیسے یہ فتحہ ہے, اسی طرح سے ضمہ ہے, اسی طرح سے جزم ہے, کسرہ, جو بھی آپ کے سامنے آپ نے ساری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, خود سے ڈراپ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یکونو یکونونا, تکونو اکونو تکونونا, نکونو. مجھے تو ابھی تک اشارے نہیں آئے اس کے. کیوں یہ جو سارے ٹیبلز کے نہیں آ رہے؟ یہ آپ نے جو کرا میں نے تو اس کا نہیں کرا, نہ مجھے پتا چلا اس کا. یہ وہی اشارے ہیں, اشارے نہیں بدلنے. اشارے ٹھیک تو ہے, ہم نے ٹھیک جو فعلا سے شروع کیے تھے نا, ایک انگلی کے جی ساتھ فعلا, فعلو, فعلت, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے مضارع بھی ایسے شروع کیا تھا, یفعلو اچھا یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا, نفعلو. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح سے یکونو یکونونا, اس کے بعد تکون
तकूनु अकूनु हाँ जी, तकूनूना, हाँ ठीक है, जी, तकूनु। हाँ जी, ये हाँ जरा जी, हाँ जी, हाँ, सेम आप वही है, सामने पर मेरे मैंने बैठे होते तो किए मैं आपको नहीं। नहीं सिस्टर, याद असल में करती। ये हाँ हो जी, रहा है सिस्टर, जब हाँ आप बोलती हैं तो आप नजर आती हैं, लेकिन जब हम लोग हाँ बोलते हैं ना तो फिर आप नजर नहीं आती, तो फिर आपके जो आप हाँ इशारे जी, करती हैं ना वो नजर नहीं आते, जी 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 जी। अच्छा वो जी, फिर वो हमारी फिर तस्वीर आपने हम वो सामने आ जाता अच्छा है। ठीक आज है, मैं ऐसे जरा हो रहा है। देखती, अगर मुझे पिन नहीं किया हुआ तो मैं पिन करती हूँ अपने आप को, सिस्टर रुकिए। पिंड है, आप नजर आ रही हैं पूरा वक्त आप बैठी नजर हैं। आती हैं जब आप बोलती हैं, जब हम बोलते हैं तो फिर वो बिल्कुल स्लाइड वो दूसरा आता है, बॉक्स आ जाता है और उसमें फिर वो इशारे नजर फिर आते हैं जो आप करती हैं। वो दूसरी साइड पे कर लेना, एक साइड पे, अगली साइड पे हाँ करें, आप जब ऐसा करें, जहाँ पे मोबाइल से सारे है ना, तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां पे कर लिया करें उसे, हाँ सारे फिर नजर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ टीचर जी। चलिए जी, अब फिर देखिएगा, अब आप जरा मुझे सामने लाएं, चाहे बड़ा करने। यकूनु यकूनूना तकूनु अकूनु तकूनूना और नकूनु, नकूनु। ठीक हो क्या जी? जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, जज़ाक- जी मैं अच्छा जी, ये छोड़ देते हैं, हमने भी टेबल करना है, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, ये है मजे की चीज, हमने कहा हमने काना से यकूनू बनाया, अब हम समझ लें कि ये तकूनू है। लास्ट टाइम ये बात की थी कि सामने वाले से शुरू करें, तो हम इसको सामने वाले से कर लेते, ठीक है। आप करते हो, आप समझ लें यहाँ पे तकूनू लिखा हुआ है, तो इसकी ता भी गिर गई, ठीक हो गया जी। इसके नून की जो थी पेश, उसकी जजम बन गई। अब क्या हुआ, हमारे पास बच गया कौनु, बच काफ गया और नून। काफ वाव नून बच और गया, ठीक है, काफ और काफ नून। वाव नून। अभी हमने सिर्फ ये अलामतें दो, अगर फिर सही से समझ आ जाए, खुद लिख लेते हैं। हम लिखे तकूनु लिखते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं, हमने गिराई है ता और हमने गिराई है इसकी पेश। अब हमारे पास क्या बच गया है, कून कून कून। बच गया। अब ये जो वाव था ये कमजोर है, कमजोर क्या करता है, बस डर के भागता भाग है। गया है। ये भाग गया, ये कह रहा मेरे ऊपर कहीं ये वजन ना डाल दें, ठीक है। अब हमारे पास ये छोटा मुन्ना सा प्यारा सा, ये आज मैंने सुना था, सब ने आपको बताया कि हमारे पास एक मुन्ना प्यारा सा बचा है, वो है कुल। और हमारे पास आज जो छोटा मुन्ना सा बेबी बचा है वो है कुन। कून। अब आप मुझे बताए, कुन से आपको कुछ याद आया? कुन जी कुन फयकून। फयकून। कुन फयकून, हाँ जी। अच्छा, जल्दी में कुन फयकुन भी कहते हैं, फयकुन नहीं कहना, ठीक है। नहीं कुन फयकून। फयकुन, कुन फयकुन। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कुन हो जा, तो हो जाता है, फयकून यानी कि बस बस वो बस हो जाता है। हो जाता है। तो गया जी। अब ये देखिए, बनना तो ये कौन चाहिए था, लेकिन कमजोर हरफ इतना कमजोर है कि हुक्म सुनते ही गायब हो गया। उसने कहा ये हुक्म की बात आ गई, मैं तो भागूं यहाँ से, ठीक हो गया, वो भाग गया। अब हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ गया कुन। अब बाकी चीजें उसी तरह से, कुनू, ठीक है। अब इसको कुन्नू नहीं करना। अब ये जो वाव कूनू। था ये वापिस आया है, ठीक है। अब ये काफ के साथ ये वाव वापिस आ गया। कुनू करेंगे ना, वो भी उसकी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी, और ये कुरान पाक में जिस तरह से यूज हुआ, हमने इसको उसी तरह आगे लेके चलना है। कुन कुनू ला कूनू। तकुन ला तकुनू, कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो, ठीक हो जाए, जैसे तुम सब मत हो इनकार करने वाले। अब हम इसका पूरा टेबल करेंगे। कूनू हो जाओ माअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ। कौन सच्चे सा आपको सच्चों के ऑप्शन? साथ। ए सच्चों के अच्छा साथ। सच्चों के साथ, ठीक है। के साथ हो जाए। स्वादिकीन ज्यादा लोग हैं। हमने देखा था जब हम अमर कहते हैं तो हम मुदारे से आंसर करते हैं, कुन आकून। कौन अकूनू। अकून अकून, अकून नहीं कहना, ठीक है। या जजम नहीं हम लगाएंगे, ये हमारी मर्जी नहीं है, ठीक है। ओके। जजम आती है लेकिन उसके पीछे रीजंस होते हैं, ठीक है। कूनू अकूनु ताकूनू। नकून नकूनू, हाँ जी, कूनू नकूनू। नकून ला तकुन, ला ला अकूना। अकून ला अकूनू। ला तकूनू, ला 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 नकूनू। नकून। ये आज पहली मर्तबा करें ना, मुंह पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है।
बार बार प्रैक्टिस करेंगे और हम इसको माजी इस्तेमरारी वाली इतनी प्रैक्टिस करेंगे ये हम इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे बुक पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसका जो हम बनाएंगे जैसे हमने बनाया था काइलुन, इसका बनाएंगे काइनुन। काइनुन। हाँ जी, और ये जो इसका डैश है इसका मतलब है कि ये जो होने वाला काम होता है इसका असर सिर्फ करने वाले पे ही पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसका मफूल नहीं है, इसकी वो है ही नहीं वो सीगा का जिसके पर असर पड़े। जब फाइल का असर अपने ऊपर ही पड़ता है तो फिर उसका मफूल नहीं होता। और इसका जो मस्तर होगा वो होगा कौन, जैसे कौल था इसी तरह से कौन। कौन। कौन कहाँ पे यूज करते हैं? कौनुन। कौनो मकान। कौनुन मकान। ठीक है, अब हम इसका पूरा टेबल कर लेते हैं। अब आप हैंड रेज कीजिए, फिर मैं बताती हूँ किस किस तरह से करेंगे। सिस्टर रिहाना, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर रुबीना, पहले ये 3 लोग करेंगे, ठीक है। सिस्टर रिहाना माजी, सिस्टर जवेरिया मुदारे और सिस्टर रुबीना आप बाकी टेबल अमर से लेके मुकम्मल कीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो बाकी सिस्टर है वो उनसे फिर हम पूरा पूरा टेबल करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें भी जिस तरह से ये उसी तरह से है। अच्छा जी, किसने माजी करना था? सिस्टर जुवेरिया ने। आ जाए जी, तर्जुमे के बगैर पेश कर लें, हम थोड़ा सा काम वैसे भी करना चाहते हैं, ठीक है। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुंता, कुंता, कुन्ना। कुन्ना। हाँ जी, कुन्ना, कानत। यकूनु, यकूनूना, तकूनु, तकून, अकूनु, तकूनूना, नकून, नकूना, ठीक है, नकूनु, ठीक है। फिर से हिया तकूनु, ठीक है। अंत तकूनु, हिया तकूनु। अब सिस्टर रोबीना, ठीक है। ला तकूनु, काइन और कौन। ठीक हो गया जी। इसका हम डैश बोलनी है, डैश नहीं बोलेंगे ना तो ये मस्तर की जगह पे आ जाएगा, मस्तर मफूल की जगह पे आ जाएगा। हम कहेंगे काइनुन डैश कौनुन, ठीक है। अच्छा जी, अब हैंड रेज करें आप। 3 सिस्टर्स के अलावा हैंड रेज कीजिएगा। आप लोग डाउन कीजिए अपने हैंड्स। अच्छा जी, सिस्टर रिहाना आप कर नहीं चुके? अच्छा जी, अब है सिस्टर अमरीन, सिस्टर नौरीन और सिस्टर कमर। अब आप इन्होंने करना, उसके बाद जो सिस्टर है उनको अभी रुकिएगा, ठीक है। सिस्टर मेरी टेबल शो नहीं हो रही, 1 मिनट। सबको शो नहीं हो रही है, सिर्फ इन सिस्टर को शो नहीं हो रही? अभी 1 मिनट से वो मैं उठी नहीं ली, तो सिस्टर मैं अभी सही करती हूँ। ठीक है। जी पढ़ना है, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़े जी। तर्जुमा नहीं करूँ ना? हाँ जी, तर्जुमे के बगैर कर लें ताकि हम थोड़ा सा अपना व्हाइट बोर्ड पे भी काम कर लें। काना, कानु, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, हिया कानत। यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया तकूनु। तीसरा भी कर लूं? कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइनुन डैश कौनुन। अच्छा जी, अब और सिस्टर के जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर्स। सिस्टर मैं करूं? सिस्टर नौरीन आप कीजिएगा। अच्छा सिस्टर ऐसा करें, आप मुदारे करें। जी सिस्टर, ट्रांसलेशन भी करनी है साथ में? ट्रांसलेशन के बगैर कर ले। अब सारी सिस्टर ये जो माशाल्लाह से हैंड रेज हैं 4 सिस्टर के, आप सब ये मुदारे वाला करें ताकि ये अच्छी तरह से हमें याद हो जाए। यकूनु, यकूनु, यकूनुना, तकूनु, अकूनु, तकूनुना, नकूनुना, तकूनु, हिया तकूनु। ठीक हो गया जी। आप हैंड रेज कर लीजिए, डाउन कर लीजिए और म्यूट करके। सिस्टर कमर नहीं जी, सिस्टर आप इसी को यकून, ठीक है, इसको जरा कर लें। यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया तकूनु। जी सिस्टर निखत परवेज। जी यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना,
नकूनूनु या तकूनून। ठीक है, तकूनूना, ठीक है, जो एंड वाला नून है इसके ऊपर हम जबर पढ़ते हैं जी। MR सिस्टर, आप अपना नाम भी बताएं और आप भी कर लें। जी, मेरा नाम मोना है, मोना, मोना अच्छा रिजवान। जी, ठीक है मोना, आपने यकू शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। जी, चले, कोई यकूनु, बात, चलेगा। असल में मेरे हस्बैंड भी वो अमान साहब और डॉक्टर रशंदा का कर रहे हैं, तो अच्छा अच्छा, हमारे ठीक, जूम जो है वो मिक्स हो जाते हैं बार चले, बार, कोई इसलिए कोई मैं मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। जी यकूनु, यकूनु नूनु नूना, ठीक हो गया जी, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया तकूनु। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सिस्टर शमीम फातिमा, अब सब अपने हैंड डाउन करें। सिस्टर शमीम फातिमा, आपने रवानी से टेबल करना, काना से शुरू करें, कौन तक आ जाए। ओके, काना, कानू, कहाँ गई सिस्टर? सिस्टर मैं करूं? म्यूट हो रवानी गया उनका, 1 मिनट। कहाँ गई है हाँ सिस्टर अच्छा, शमीम? हाँ सिस्टर शमीम ने इतने जोश से शुरू किया था। नजर लग गई सिस्टर आपको? नजर की दुआ पढ़िएगा। उस वक्त तक मैं कर लूं, फिर उनसे उन्हें चांस दे दीजिएगा। चले, ठीक हो आ गया जी, गई है आ भी गए सिस्टर, वो आ तो। गई है। चलो, वो फिर सिस्टर चली आवाज गई। नहीं आ रही थी मेरी? हाँ जी, अब आप, हाँ जी, मोबाइल को थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि आपका हाथ ना लगे, ठीक है। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, कूनु, हिया तकून। थोड़ी सी गड़बड़ की है आपने, अच्छा जी। अच्छा चले, इनका फिर से म्यूट हो गया। सिस्टर कमर, आपने कहा था मैं कर लूं। जी जी सिस्टर, मैंने कहा था। चले जी। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, तकूनून, कुन, तकूनु, कु- बस तकूनून नहीं, तकूनु, ठीक है। तकून, ठीक है। कुन, तकूनु, तकूनु, हिया तकूनु, ठीक। कुन, कूनु, ला तकूनु, काइन डैश कौन, कौनुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये टेबल जो है ना, इसमें आपने ये करना है कि पुराने बाग में से इसके ढूंढिएगा जो मजीद, जो आपको जो जो सीगा मिले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है पुराने मजीद में। इसका फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ये आपको बड़े अच्छे तरह से याद हो जाएगा। अब मुझे ना ये सूरह कौरिया में से याद आ रहा था, मैंने कहा मैं आपको देख के बताती हूँ। इसकी 5वीं आयत मुबारक, वतकूनुल जिबालु कल मनफूश। ठीक हो गया, इस तरह से आप भी ढूंढिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। 6 चाबियां हम जो याद करते हैं, काना यकूनु कुन काइन डैश कौन, काना यकूनु कुन काइन डैश कौन, इस तरह से चाबियां याद करेंगे तो अगर चाबी हाथ आ गई तो पूरा खजाना हम उसका बना सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, काना से अस्मा की चाबियां। पहला वाला ए, काइन डैश काउन। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब ये कौन करना चाहेगा? तुम सब जानते थे। अच्छा, अब पता क्या करना, तुम थे का पहले बनाए। तुम थे, क्या थे? तुम थे। अन, यकून, हाँ जी, नहीं, तुम सब, कुन तुम, तुम नहीं, अंतुम, कुन तुम, अंतुम। कुन का, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा। हमने काना के टेबल से बनाना है, ठीक है। हमने वो अंतुम वाला नहीं लाना है यहाँ पे, हमने काना के टेबल से बनाना है इसको। कुन का, कुन तुम सब, ज्यादा लोगों की बात हो रही। कुन तुम बाजी तुम, कुन तुम तुम, ठीक है, तुम सब थे। कुंतुम यालमून। अच्छा या अच्छा जी, कुंतुम हमने यालमूना, कहा, यालमूना। हमने कहा जो टेबल हमने माजी से उठाना वही हमने उठाना है। तालमून आएगा, तालमून। हाँ जी, मैंने इसको लिख दिया है तामल। ठीक है जी, उसको सही करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। कुंतुम
जब भी आपने इसका बनाना हो ना अरबी में, तो आप पहले इसके 2 टुकड़े करें ताकि हमें समझ आए कि हम बनाना क्या चाहते हैं। कुंतुम तालमून ना, तालमूना, यानी कि मुदारे का भी सामने वाला और माजी का भी, ठीक है। इसके बाद है इन कुंतुम मैडम ये तालमून, मैडम एक्सक्यूज मी, ये माजी इस्तमरारी है ना? ये माजी जो इस्तमरारी है जी, ठीक है। अब इसका तर्जमा कर लें। इनका तर्जमा हो गया इंशाअल्लाह से अगर। अब बाकी तर्जमा क्या बनेगा? अगर तुम सब तुम जानते सब तुम सब जानते हो। सब जानते होते भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुम सब जानते होते। अच्छा जी, अब अरबी में जवाब दें, क्या आ जाएगा जवाब? हल नाम कुंतु तामलु हाँ जी, सालिह कुंतु, हाँ जी ठीक हो गया, कुंतु। आमलू सालिहन। और कुंतु इसके बाद हमने इसको भी उल्टाना है, ठीक है, अमलु जी सालिहन, अमलु सालिहा, अमलु ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल कर सकती हूँ यहाँ पे? जी जी कीजिए कीजिए। ये जो पहला था तुम सब जानते थे, पहला वाला, हाँ जी, अब ये तो हम काना का टेबल कर रहे हैं, तो हम को याद है कि वैसे ही अगर जनरली ये आता तुम सब जानते थे तो हम तो तालमुन लिख देते ना, उसका हम मतलब भी यही तालमून होता लिख ना। देते, वो हम तब लिखते जब हम जानते नहीं थे, अब हम जान गए, ठीक हो अच्छा, गया जी। ठीक है, जब हमने ठीक है, समझ लिया ये, तो फिर हम अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। वो कौन थे सही, जो जानते थे और अमल नहीं करते थे? वो कौन थे? हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था, वो जी दौलीन थे, ठीक है, वो जानते स्वालीन। थे फिर भी अमल नहीं करते थे। अब हमने सही, जान लिया है, अब हमने जब ठीक इस है, तरह के अल्फाज देखने हैं तो हमने कोशिश करनी है कि हम उसका प्रॉपर तर्जुमा कर सकें, ठीक हो ठीक गया है जी। इंशाल्लाह। और जी इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हम सीखने के लिए बैठे, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, मैं आप लोगों से सीखती हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, इसी तरह से हम अपने असातिज़ा से सीखते हैं, और इंशाअल्लाह हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना। तो काना की तरह है जाका, और इसी तरह हमने जैसे देखा। अच्छा, इसके जो काना के जो रूट लेटर है, इसमें हमें पेश ने बता दिया कि ये इसका जो रूट लेटर काफ वाओ नून, इसका मस्तर भी यही बनता है, इसका रूट लेटर भी काफ वाओ नून। अगर मैं कहूँ जाका का बताएं तो बता सकते हैं आप क्या बन जाएगा? सेम इसी जा पैटर्न वाओ से का जा। साल वाव और कॉफ। इसका टेबल मैं एक दफा दोहराती, फिर आप इंशाल्लाह कीजिएगा इसको अपने होमवर्क में। जाका, जाकू, जुकता, जुकतू, जुकतुम, जुकना और जाकत। उसके बाद यजूकू, यजूकूना, तजूकू, अजूकू, तजूकूना, नजूकू, हिया तजूकू, जुक, जुकू, ला तजुक, ला तजूकू, जायकुन, मजूकुन और जौकुन। ठीक हो गया जी, ये इसको हम इंशाल्लाह अपनी उसमें करेंगे, वर्कबुक में करेंगे, इसी और इसी तरह से हम इसको ताबा, उसमें कंप्लीट। मैम इसी तरह ताबा का भी करा दें। ताबा, ताबू, तुबता, तुबतु, तुबतुम, तुबना और ताबत। यतूबु, यतूबूना, ततूबु, अतूबु, ततूबूना, नतूबु, हिया ततूबु। इसके बाद तुब, तुबु, ला ततुब, ला ततूबु। ताइबुन, इसमें भी अक्सर मतूब की जगह डैश लगाया जाता है। फिर तौबतुन, ठीक हो गया जी। मतूब होता है, कहीं इला के साथ आएगा, कहीं अला के साथ आएगा। इंशाल्लाह हमारी अगली क्लासेस में वो आ भी जाएगा, उस फर्क को भी हम समझ लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो वजदा का और देख इया की बोल दे फेल अमर और किसका? वजह वजदा। वजादा का जी हाँ वो जिद, आएगा जी। जैसे हाँ फेल जिद, अमर में जिद पढ़ेंगे, जी जिद। फेल अमर में हम जिद पढ़ेंगे। हाँ, वो हम क्यों, हमने ईद भी तो किया ना, वो क्यों हम ईद पढ़ते हैं? हाँ जिद जिद। उर्दू में कैसे फिर बोलेंगे? उर्दू में मुझे उसको एडजस्ट करना नहीं आ रहा है। वैसे ईद का मतलब है वादा कर, और हाँ जी, वजदा का तो मतलब पाना पा, होता है ना। पा, तो फिर पा। पा या तू पा, ठीक है, पा ले, पा लेना, ठीक है। इसको इसी तरह से करेंगे क्योंकि ये इसी तरह से बनते हैं, हम इसको अपनी मर्जी से करेंगे भी नहीं, ठीक है। वो ठीक जिद है। हमने क्यों बनाया था? वो हमने जिद इस वजह से बनाया था, वो था वाजादा या जीदू, या जी तो या जीदू, ठीक है। इसकी हमने जी गिराई थी या, और ये हमने जज्म गिरा के बनाया था जिद, जी। और कोई तब्दीली नहीं हुई थी,
اس کو کچھ جی عارضی نہیں لینا پڑا، اس میں سے کچھ اور کٹ آف نہیں، جیسے ہم نے اب آج کون میں سے واؤ نکالا نا، اس میں سے نہ کچھ اس میں سے نکالنا پڑا نہ اس میں کچھ ڈالنا پڑا، جیسے وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو جوسز ہوتے ہیں نا نیسلے کے، اس میں نہ کچھ ڈالا جاتا ہے نہ کچھ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ایک اور چیز تھی، کسی سسٹر نے پوچھا تھا، شاید سسٹر نورین نے پوچھا تھا. جی جی سسٹر میں نے پوچھا تھا، وہ متقین کا 2 جمع لکھے ہوئے تھے، ایک متقون اور ایک متقین، جبکہ متقین کا میرے خیال میں تو متقین ہی ہونا چاہیے تھا. چلیں اب ہم دیکھیں، ہم نے بنانے ہیں اسم فاعل ناصرون کے وزن پر، اسی طرح ہم نے بنائے نا فاعلون ناصرون فاتحون، اسی طرح سے بنائے نا. اب ہم پہلے اس کو کھولتے ہیں، یہ ہو گیا ناسی. اگر ہم ایک پیش دیں تو ایک پیش ہم نے کہاں سے نکالی ہے، اس نون کو ختم کر کے پھر یہ 2 پیش بنا. اس کا لکھنے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا ناصرون. اب یہ جو ناصرون اس کو ہم آسان لکھ سکتے ہیں کیسے، 2 پیش. اس کی ذرا مجھے آواز بتائیے کیا ہوگی. ناصرن. اور یہ ناصرون. ناصرون. اب کیا کیا گیا، نون کو حذف کر دیا گیا اور 2 پیش بنا دی گئی. اب متقین میں کیا ہو رہا ہے، متقی میں آ جاتا ہے ایک کمزور حرف. ٹھیک ہو گیا. اب کمزور حرف ہے، اس وجہ سے اس کی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، تبدیلیوں کو ہم یہاں دیکھتے ہیں. اب اس کو ہم پہلے ناصرون کی طرح، جیسے ہم نے یہ کھولا تھا ایسے کھول کے دیکھتے ہیں. میرا متقی خراب ہو گیا، متقی اور یہ ساتھ یا اور یہ ایسے آ جاتا ہے متقین. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس میں قاف ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو یا ہے یہ جب ہم متقی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یا ہے یہ اس زیر کی وجہ سے ہم نے اکٹھی پڑھ لی. اس کو ہم جب تجوید کے رول میں پڑھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یا مد. اس کو ہم 2 کاؤنٹ لمبا بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس یا کو پڑھ رہے ہیں. اب جب ہم نے اس کا اس طرح سے ناصرون کی طرح بنایا، اب یہ بن گیا متقین. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کیا کہ یہ جو یا ہے اس کے اوپر آ جاتی آٹومیٹکلی ایک جزم. اب یہ جو متقین ہے اس نے اس یا کمزور تھی اس کو گرا دیا، متقین. اب ہمارے پاس یہ بچ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں کہوں کہ متقین کو بولنے کا دوسرا مجھے طریقہ بتائیں. متقین، اب یہ بولنے اس کے بعد یہ بولیں، بولیے گا. یہ بھی بنتا ہے متقین، اس طرح سے بھی متقین بنتا ہے. ٹھیک ہے، متقین متقین، یہ لکھنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ متقین ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے نون گرا کے، اب کیونکہ یہاں پر زیر تھا نا، زیر، تو یہ جو نون ہے اس نے ایک اور زیر ہی لینی ہے. جیسے یہ پیش تھا نا ناصرون میں ایک پیش تھا، جو ایک نون ہے اس نے وہ پیش ہی لینی ہے. اگر یہ ناصرن ہوتا تو اس کو لکھنے کا انداز ہونا تھا ناصرن. ٹھیک ہو گیا. یہ نون حذف ہوتا. تنوین کیا ہوتی ہے، تنوین، تنوین میں ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے. جی سسٹر، کسی سسٹر نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی سسٹر میں نے کیا تھا، میں یہی کہنے لگتی ان کو یہ بتائیں کہ تنوین میں ایک نون چھپا ہوتا ہے، تو میں ایک نون چھپا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو کیا. اب یہ جو نون ہے یہ لکھنے کا انداز ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے جو آپ کو نظر آئیں گے، یہ آپ کو جتنے بھی، اب یہ متقی ٹیبل آپ اس میں نہیں کریں گے لیکن آگے ہم انشاءاللہ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، بلکہ کہا میں زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اب ہم جب ہدا کا بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک یا ہے، پڑھی نہیں جاتی، لیکن یہ کہ وہ ہے اس کے اندر. اب جب ہم اس کا فعل اسم فاعل بنائیں گے وہ اسی طرح سے بنے گا کہ اس یا کو پھر حذف کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ یہ اس کے اوپر ایک یہ جزم جو ہے نا یہ پھر کمزور حرف کو گرا دیتی ہے. ٹھیک ہے، جزم اس سے فرق نہیں پڑتا لفظ کو. اس کو ہم بار بار کریں گے تاکہ یہ آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائے.
ठीक है। ठीक हो गया सिस्टर। और अब हमने ये समझा यहाँ पर कि ये जो मुत्तकिन की तरह के जितने भी होंगे ना, जिसके बारे में हम खास कहेंगे कि ये 2 ज़ेर वाला हमने बनाया है, थोड़ी सी मिसालें मैं लिख देती हूँ, ये इंशाल्लाह अभी आगे हमने करने भी हैं टेबल सारे, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे हादिन, तो इन सब की हम 2-2 तरह की जमा बनाएंगे, ठीक है। या नून वाली भी और वाव नून वाली भी, इनकी दोनों तरह की जमा बनेगी। जी। ठीक हो गया सिस्टर्स? इसको हम बार बार समझते जाएंगे, ठीक है। फिर जिस जिस लफ्ज को आप कहेंगे हम इंशाल्लाह। खोलते जाएंगे उसे, उसको हम खोलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे टेबल आते जाएंगे हम खोलते जाएंगे टेबल्स को, ठीक है। सिस्टर प्लीज ये वाला, ये जो लेसन है ना, ये भी आप रिकॉर्डिंग में जरूर शामिल कीजिएगा, ये एंड पे जो आपने ब्रीफ किया है ना, हाँ जी। ये भी शेयर हफ्सा कर दीजिए। आपने इसको रिकॉर्डिंग जी खत्म तो नहीं की जी थी? सारे एडिड हैं, लास्ट वाले सारे हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी एडिड हैं। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, अच्छा मैं जी। भी अब यही अब कहने लगी आप, थी हाँ कि ये सारी चीजें ऐड ही रखिएगा। हाँ हाँ जी। जी। अब आपने पता है क्या करना, एक आप खुद कोशिश किए, मतलब ये जरूरी नहीं कि अभी से आप बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि परफेक्ट बनाए, कोशिश जरूर करें। जो कोशिश करता है, मैंने इसमें डाला भी था ना, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, ठीक है। जब मम वजदा, उसके बाद उसने क्या किया, वजदा उसने पा लिया, ठीक है। अच्छा सिस्टर, एक और कॉन्सेप्ट भी नहीं आप अभी बता दें, वो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला था ना, वो भी इनका यहीं पे क्लियर कर दें, ठीक है। वो जो इसके अंदर अच्छा जी। फाइल अलग से आ रहा है ना, वो हाँ, उसका कोई मुझे एग्जाम्पल दे, फिर हम उसको बता देंगे। दाराबा हामिदुन जैदन। ये वैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था मेरा अच्छा ख्याल है। इनने कर लिया था, बस फिर ठीक है। चले एक कर लेते हैं। हामिदुन, किसको मार पड़वानी है? जैद की शामती आती है। ठीक है। अब ये जो फेल है ना, जब भी आप कोई फेल देखें, उसके बाद आपको अस्मा नजर आए, जो इसम पेश वाला होगा वो इसका फाइल बन जाता है, ठीक है। अब इसका जब सीधा सीधा तर्जमा करते हैं, वो बनता है उसने मारा हामिद ने। अब इसको हमने क्या करना था, इन दोनों को आपस में मर्ज करना होता है। अब हम इसने को खत्म करके बना लेते हैं, हामिद ने मारा जैद को। इसके लिए आसानी के लिए याद रख लें, ये जो 2 पेश है, सिंगल भी होता अगर, तो इसका ने वाला तर्जमा होता है, और ये जो 2 जबर है, इसका को वाला तर्जमा आ जाता है, ठीक है। जैद को मारा, जैद की मदद की अगर होता नासौरा हामिदुन जैदन, ठीक है। अगर 2 जबर होते हामिद पर, तो हामिद को मार पड़नी थी जैदुन से, ठीक है। जो फाइल है, जो ऊपर फाइल आ जाता है, जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसका माना ने वाला हो जाएगा इसका तर्जुमा। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा 5 मिनट है। अच्छा जी, अगर कोई सिस्टर होमवर्क खोल ले तो मुझे वो जो इसम फेल हर्फ वाला क्वेश्चन कोई एक बताएं। इसके बाद होता है वाहिद जमा, इसके बाद आती है मुज़क्कर मुअन्नस। सच्चे वो तफाला वाला कर ले, कौन सा? तफाला, जिसके अंदर वो वाला, हाँ तफालू, तफालू वाला कर ले, वो वाला जो एक काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन सबको लगता है। हाँ, मुझे लिखवाएं जरा। यहाँ पे लिखे यफालू, यफआलू, ठीक है। यहाँ पे लिखे इफअल लिख लें, इफअल नहीं आएगा, इफअल, चलिए लिख लें। और तफालू, तफआलूना लिख लेते हैं। हाँ एक्चुअली मैं वो वाला कराना चाह रही थी, वो जो मोनस वाला नहीं होता, वो फिर उसमें पता ही नहीं चलता, सारे ही फेल है, कौन सा होगा अलग। अच्छा, जिसमें सारे फेल आ जाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, वो सिर्फ QC1 में एक मर्तबा ही आता है, अच्छा अच्छा बस, जिसमें सबका गलत होता है। हाँ चलिए यही फिर इसमें हाँ कराना, हाँ, इसमें तो इसमें चले, इसमें अगर एक समझा, हाँ, इसमें हाँ अगर तफालू लिखेंगे तो फिर इसमें ये हो सकता है कि हाँ जैसे सबसे पहले हम पहली वाली पे चले जाएं, इस हाँ वाले क्राइटेरिया पे जाएं, तो ये क्या है, ये सारे अब आप लोग मुझे बताएंगे ये सारे क्या हैं। यफआलू क्या है?
فعل مضارع हाँ, मुजारे नहीं 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 नहीं, यही आपने नहीं कहना, मुदारी नहीं कहना, सिर्फ बताएं फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, इसके बाद ये भी फेल है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ये वाला पूरा इसको रिजेक्ट कर दिया, हमें मिला ही नहीं इसमें से, इसमें से ये हुआ ही नहीं कि कोई इसम हो या हर्फ हो, ये सारे ही अफआल आ गए। अब हमने अगले पे जाना, अब क्या करना है, अब आप मुझे बताते जाएं, वाहिद जमा बताते जाएं। यफअलु वाहिद, इफअल वाहिद वाहिद तफअलूना जमा जमा, तफअलु वाहिद वाहिद, ये हमारे पास ऑड वन हो गया, तीन एक जैसे। अच्छा जी, अब अगर ये ऐसे होता ना, अगर आप मुझे इसमें से कोई होमवर्क में से बताते थे, चले अब हम ऐसा कर लेते हैं ना, सारे अस्मा लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं, चले नासिरुन, इसके बाद हम लिख लेते हैं फाइलूना, इसके बाद हम लिख लेते हैं ज़ैदन, करीब करीब लिख लेते हैं, इसके बाद हम लिख लेते हैं हम लिख लेते, इसका नाम लिख लेते, चले मरियम लिख लेते हैं, मरियम। अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि ये जो हैं ये सारे हैं इसम 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 इसम। अब हमने पहले मुज़क्कर मुन्नस नहीं ढूंढने, हमने पहले क्या करना, हमने पहले वाहिद जमा पर जाना है। अगर हमारी बात यहाँ पर हल हो गई तो इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे नासिरुन क्या है, वाहिद है, फाइलुन क्या है, जमा है, ज़ैदुन क्या है, वाहिद है, मरियम क्या है, वाहिद है। यहाँ हमने मुज़क्कर मुन्नस नहीं देखनी, अगर तीन मुज़क्कर होते एक मुन्नस होता तो फिर हम जाते, उस सूरत में ये सारे वाहिद होते या सारे जमा होते। अगर हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट हो रही है ना वाहिद जमा पर, तो ये थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पे हम तब जाएंगे जब हमारे सारे वाहिद हों या सारे जमा हों, ठीक है क्या जी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में ना हम कोई अपने होमवर्क में से कोई क्वेश्चंस निकाल के उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जब आप लोग होमवर्क कर लें सारे तो फिर इंशाल्लाह हम उसको कर लेंगे, ताकि जब आप पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से करें, उसके बाद हम करें, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या सिस्टर्स, यहाँ पर हमारी क्लास भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आप सबने नियत भी की हुई है ना कि हमने टीचर भी बनना है इंशाल्लाह। तो आए मिलके दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में